Good morning to everyone. Your potential is endless. A very warm greetings to everybody who has joined in. We start with a nice divine prayer, which we have been playing in Dachams. Sometimes it is live, sometimes it is a video. So this time we have a video of this nice song, which is almost like a Dachams anthem. So please enjoy, please pray to the Lord in the beginning of the session. We have an interesting lineup for today. Namaskar. A warm welcome to all our Diachams India. As we already know the design program for today, we started with our prayer. I'll speak for 5 minutes. Then we go with our yoga session where we will all be doing together. Then Surbhi will lead the team with experience sharing. Then Anirban Datta will come and give a learning session. So that's the session for today. So now the message for today. जैसे हम सब जानते हैं, पूरा भारतवर्ष से अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से हम सब लोग जुड़े हैं. We, being in various parts of India with different cultural background, we are united with one cause, that is type 1 diabetes. क्योंकि हम सबको टाइप 1 डायबिटीज़ रिलेटेड से एक सवाल, चैलेंज हमारे सामने है, इसलिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं. टुगेदर वी फाइट बेटर, दैट इज द मोटो. टुगेदर वी लर्न ऑल द गुड प्रैक्टिसेस फॉर अ वंडरफुल लाइफ, फॉर अ हेल्दी लाइफ, फॉर अ वेल्दी लाइफ एंड फॉर अ वर्दी लाइफ. This being our motto, and the teachings of Swami Vivekananda, Shiva Bhave Jiva Seva, living, serving the living God in man, doing work as worship, that being our motto and guide, we are proud to say Reach Health, Cerimet, is our backbone of the program, who are doing all the back end work to connect all of us. जहाँ पे घर पे हम आसानी से बैठ के एक दूसरे से मिल सके, उसके लिए रीच हेल्थ, सेरीमेड बहुत ही अच्छा एक सेवा भाव से सेवा दे रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा परिश्रम के साथ, निष्ठा के साथ काम करके हम सब लोगों को हर महीना आखिरी रविवार सुबह 8 से 9:30 बजे तक जुड़ के रखने का एक अच्छा काम कर रहे हैं. सो माय लव एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द रीच हेल्थ केयर वर्कर्स एंड सेरीमेट टीम. एंड टुडे बीइंग द ऑस्पिशियस डे ऑफ होली, आज शुभ होली का त्यौहार है. सभी को मेरा नमस्कार और प्यार भरा ढेर सारे शुभकामनाएं. दिस फेस्टिवल ऑफ कलर्स is celebrated all over India, which is the manifestation of the joy within, the divine joy, the Vishayananda, the Bhajanananda, the Brahmananda. We get some sort of joy when we get some things in this world, that is Vishayananda. When we take the name of the Lord, there is higher joy.
that is called as Bhajanananda. And when you attain your real self, that is Brahmananda. So, by taking the divine name, you get the joy within. So, Holi is celebrated by singing the glory of the Lord, especially as preached and lived by Chaitanya Mahaprabhu. So, let us offer our pranams and sashtang namaskars to Chaitanya Mahaprabhu to take his blessings. May he bless us all with good energy, spirit, and great life, with great health. And the purpose is to learn. Diabetes Self-Management Education, DSME. Physically, mentally, emotionally, we should become strong so that we manifest our spiritual energy. हमारे अध्यात्म शक्ति को जो हमारा भीतर में उसको प्रकट करने का एक कोशिश है, यही साधना है। वो तभी हो सकता है जब हम शारीरिक, मानसिक और भावना से शक्तिशाली हो। So to make this physical body strong, we should do regular physical exercise, yogasana, pranayama, proper diet, prayer and meditation to take care of the mind, the emotions. Where there is a strong body, there lies a strong mind, and vice versa. So what we want is strength. Strength is life, weakness is death. Few of the children who have joined for the first time, जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़े हैं, उनको हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को बताते जाएंगे। ये जो कार्यक्रम है हर महीना आखिरी रविवार कैसे चलता रहेगा, इसका मकसद क्या है, आप लोग सीखते जाएंगे। जो भी आपके प्रश्न हैं आप चैट बॉक्स में पूछते रहेंगे, और जो हमारा हेल्पलाइन है उसमें भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। Those of you joined new can always take the help of helpline to have any queries, and also you can put your questions in the chat box. So our efforts will be to provide you all that is required to make you physically, mentally, emotionally strong, to become disease free. Type 1 diabetes, as we say, is a autoimmune disorder. हमारा इम्यूनिटी में कुछ गड़बड़ आ गया, इसलिए हमारा शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, हमको लाइफ लॉन्ग बाहर से लेना है। Our body is not able to produce insulin from inside, so we have to take insulin from outside, that is type 1 diabetes. टाइप 1 डायबिटीज में हमको क्या क्या करना है, जो हमारे ऑलरेडी जो पुराने बच्चे हैं आपको सब तरह को बहुत अच्छी तरह से याद है। रोज हमारा ब्लड शुगर मेजरमेंट करना है, खाने के हिसाब से हमको इंसुलिन लेना है, हमको सही खाना खाना है, बैलेंस फूड खाना है, योगा प्राणायाम करना है। ये करने से हम एक स्वस्थ आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। इफ आई एम टाइप 1 डायबिटिक, आई शुड measure my blood sugars daily, I should take insulin according to the food I eat, I should eat healthy food, and I should do regular exercise. If I do this, I can lead a happy and normal life being a type 1 diabetic. This is what we have been learning together for the last 10 years. Those who are old and previously joined the sessions, you know the things detail. Those of you like Anvit and all who have joined for the first time, we will be learning step by step in detail. So take the help of our diabetic educator, reach helpline number, and put your questions in the chat box. So today we shall be learning yoga for life. हमारा जीवन के लिए योग करना है। मैं समझता हूं सभी बच्चे, पेरेंट्स योगा करने के लिए तैयार हैं। योगा मैट आपके पास होना चाहिए, और आप कंफर्टेबल कपड़ा पहने हो योगा करने के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी जो भी हमको ज्वाइन किए हैं, पुट ऑन योर वीडियोस। आपका माइक बंद रहेगा, आपका वीडियो सब लोग ऑन करेंगे ताकि मैं देख सकूं आप लोग कैसे कर रहे हैं मेरे साथ योगासन। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द डायबिटिक चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स to put on their videos so that you do yoga with me. With me, Naresh ji is there from Reach Healthcare, who is a yoga expert. He will be doing yogasana and pranayama with me. You can look at me and Naresh ji, Reach Health, and practice yogasana, pranayama together.
Again, Yogasana is therapy. Pranayama is therapy. Prayer and meditation is therapy. जो हम योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे, ये सब हमारा जो स्वास्थ्य है उसको पाने के लिए एक चिकित्सा है। योगा एज वे ऑफ लाइफ, अगर योग हमारा जीवन पद्धति बन जाए हम सब तरह के बीमारी से दूर हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। अगर हमको कोई बीमारी है उसको हम सही से मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमारा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, इंसुलिन लेना पड़ रहा है, वो तो करेंगे, लेकिन साथ में बॉडी को फिट रखने के लिए हम रोज योगासन, प्राणायाम, प्रार्थना और ध्यान करेंगे। योगा या थेरेपी, ये जो हमारा एक समस्या है टाइप 1 डायबिटीज चैलेंज है, उसको सही से सामना करने के लिए योगा हमको बहुत मदद करता है। जो भी हम योगी हैं, स्वास्थ्य तो पाना ही है और आनंद पाना है। शरीर, मन, आत्मा एक जहां हो जाए वहां आनंद ही आनंद है। बच्चे जब हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, एक तरह का आनंद भगवान के साथ है, वो भावना आता है, वही हमको पाना है। तो उसके लिए शरीर को भी स्ट्रांग रखना है। तो सब मिलके हम आज योगासन प्राणायाम करेंगे। शुरुआत करेंगे योगिक जॉगिंग। जो भी योगासन हम करेंगे उसका शुरुआत होता है फ्री हैंड एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज, इसको हम बोलते हैं योगिक जॉगिंग। जहां पे आप कमरे पे हैं वहीं पे मेरे साथ सब लोग जॉगिंग करेंगे। कैसे? जहां है वहीं मैट पे ऊपर हाथ हिलाओ, पांव हिलाओ, रनिंग करो। फोकस इज ऑन द ब्रेथ, आनंद में, मजे में। एक कंडीशन है योगासन प्राणायाम योगिक जॉगिंग करने से पहले अपना शुगर चेक करना है। शुगर जो है 100-150 के बीच में होना चाहिए, कम शुगर नहीं होना चाहिए। अगर शुगर कम है तो एक केला खा लो, अगर शुगर नॉर्मल है तो कुछ खाने की जरूरत नहीं। योगिक जॉगिंग, द फोकस इज ऑन द ब्रेथ। लंबा सांस, जितना तेजी से दौड़ोगे उतना ऊर्जा। हाई स्पीड योगिक जॉगिंग विल मेक यू मोर स्ट्रांग। शक्तिशाली बनना है, योगिक जॉगिंग रोज करो। सौ साल जवान रहना है, शक्तिशाली रहना है, रोज योगिक जॉगिंग करो। दैट इज कॉल्ड एज योगिक जॉगिंग। इसके साथ हाथ ऐसे ऊपर उठाओ, लंबा सांस के साथ आनंद में मन मस्त होके रोज करो योगा। योगी बनो, निरोगी बनो, आनंद में रहो। सदृढ़ शरीर, सदृढ़ मनस आत्मा का पास ले जाता है। अ स्ट्रांग बॉडी एंड माइंड विल टेक यू टू योर रियल सेल्फ, आत्मा, सोल। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा के साथ एकत्व होना, यही योग है। देन जंप, फ्रॉग जो है जंपिंग करता है, उसको डायबिटीज होता नहीं है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, योगिक जॉगिंग, जंपिंग एक्सरसाइज हमारा ऑर्गन्स को फिट करने के लिए मदद करता है। सो जंप, उसके बाद रिलैक्स, लंबा गहरा सांस, देन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। Take a deep breath, go back, breathe out, go forward.
Breathe in, go back. Breathe out, go front. Forward and backward bending. Decreases central obesity. Central obesity is the root cause for all metabolic disorders. Sidewise bending. योगिक जॉगिंग। घर में, अपने घर में, सेफ जगह में पूरा शरीर को व्यायाम, रनिंग, पसीना निकालो रोज। जो जितना ज्यादा पसीना निकालेगा उतना शक्तिशाली बनेगा। If you sweat daily with proper exercise, you are going to get good health. You are going to become strong. Strong body. हमको बनाना है, शक्तिशाली बनना है बच्चों। इसके बाद अल्टरनेटिवली अपना ये जो नीचे अंगूठा है ना, उसको टच करो हैंड से, ऊपर देखो ऐसे, स्प्रेड करो ऐसे, ऊपर देखो, हाथ ऊपर जाएगा, ऊपर देखोगे, एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड लेके राइट फुट को टच करना है। ये जो है कमर के लिए बहुत एक्सरसाइज अच्छा है। वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द वेस्ट ट्रंक, है ना? मजा आया ना? और थोड़े से हाथ घुमाओ, है ना? फ्री हैंड एक्सरसाइज, आनंद से। अच्छा भजन लगाओ, म्यूजिक लगाओ, मस्ती में योगा करो। बहुत मजा है इसमें, बहुत आनंद है। शरीर मन सदृढ़ बनाना है, शक्तिशाली बनना है, आनंद में रहना है, चिंता विलाप रहित। मन के अंदर बहुत सारा चिंता दुख है, उसको भूलना है तो रोज व्यायाम करो, योगा करो, है ना? शक्तिशाली बनो। इसके बाद अभी बैठो, सूक्ष्म व्यायाम। जो हमारा हर एक अंग है शरीर में, उस अंग को एक्सरसाइज प्रोवाइड करना है। किसी को एड़ी में दर्द है, पाँव में दर्द है, तो क्या करना है? एक करो एक्सरसाइज, दर्द चला जाएगा। सूक्ष्म व्यायाम। सांस ले लो, पाँव को ऊपर खींचो, सांस छोड़ो, आगे करो। ये एड़ी में, एंकल में सब दर्द चला जाएगा और स्ट्रांग बनेगा एड़ी। ब्रीद इन, मूव अवर फुट अप, ब्रीद आउट, टेक टू द फॉरवर्ड। और रोटेशन, एंकल रोटेशन, एड़ी को घुमाओ। फॉर स्ट्रॉन्ग फुट, सूक्ष्म व्यायाम। फुट के लिए सूक्ष्म व्यायाम। उसी तरह घुटने के लिए, ये जो घुटना है ना, नी जॉइंट स्ट्रांग बनाना है। घर में ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को घुटना में दर्द है तो आस्क देम टू डू दिस एक्सरसाइज। ऐसे ऊपर लेना, नीचे छोड़ना, सांस अंदर लेना, पांव ऊपर करना, आगे करना। वेरी गुड फॉर नी जॉइंट्स। नी जॉइंट्स को स्ट्रांग करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। अच्छा भजन लगाओ, म्यूजिक लगाओ और ये योगा करो। So we have to make all our joints, ankle joint, knee joint strong by doing सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम करने से ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा होता है। दिस सूक्ष्म व्यायाम अभी रिस्ट के लिए करो, हाथ। बहुत मजा है इसमें। देखो स्ट्रांग बनता है, हैंड स्ट्रांग बनता है। मेक योर हैंड स्ट्रांग। हंसते हंसते मजे में सब मिलके घर में करो, योगा करो। ऐसे हैंड रोटेशन करो, रिस्ट रोटेशन करो और एल्बो फोल्ड, स्ट्रेच, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। साइड वाइज। अन्वित बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है अन्वित। नीचे ऊपर।
उसके बाद शोल्डर, सांस, लंबा सांस के साथ शोल्डर के लिए, जॉइंट के लिए एक्सरसाइज। शोल्डर में कोई दर्द नहीं आएगा। यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द पेन्स इन द शोल्डर जॉइंट इफ यू डू दिस एक्सरसाइज डेली 10 टाइम्स, फॉरवर्ड बैकवर्ड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह नेक के लिए ब्रीद इन, गो बैक, ब्रीद आउट, कम फॉरवर्ड, साइडवाइज। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गर्दन में दर्द है, उसका इलाज है ये एक्सरसाइज, नेक एक्सरसाइज। फ्री हैंड एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। शरीर में हमारा फुट से लेके नेक तक जितने भी जॉइंट्स है उसको सही से मूवमेंट करना चाहिए, ब्रीदिंग के साथ, अलॉन्ग विद द ब्रीदिंग। मजा आता है। When we do yogasana, pranayama, your blood circulation improves, oxygen supply improves, your good hormones, hormones which will give you happiness, health will increase. All that is good will manifest when you do yogasana, pranayama. तो ये हो गया योगिक जॉगिंग एंड सूक्ष्म व्यायाम। इसके बाद हम आज कुछ आसन सीखेंगे, कुछ आसन जो बैठ के करने वाले हैं। ये आसन जो हमको डायबिटीज को अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं, हमारा इंसुलिन का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है अगर हम डेली ये योगासन करते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सम आसनास इन द सिटिंग पोस्चर। सिट इन द वज्रासना पोस्चर। ऐसा पाँव है ना नीचे फोल्ड करके ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ। पुट योर बटक्स इन बिटवीन योर एंकल जॉइंट। वज्रासन। वज्रासन में बैठ के हम आज सीखेंगे मंडूकासना, फ्रॉग पोस्चर। स्ट्रेच योर हैंड्स लाइक दिस। आगे हाथ करो, मुष्टि बांधो, सांस अंदर लो। अभी सांस छोड़ते दोनों मुट्ठी को पेट के ऊपर रखो, सांस छोड़ते आगे जाओ। ऐसे ही रुके रहो यहां। पुट द प्रेशर ऑन द एब्डोमेन, बेंड फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, आगे देखो। ये है मंडूकासन। मंडूकासना इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज। जो हमारा ये ग्रंथि है, यहां पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है। तो हमने क्या किया, मेक फिस्ट, breathe, put the fist on the abdominal wall, breathe out and go forward. Put the pressure on the abdominal wall. It will improve the health of the pancreas. It will decrease the insulin resistance. किसी को बहुत ज्यादा इंसुलिन लग रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मंडूकासना will improve the insulin resistance. So your insulin requirement will come down. Your pancreas will gain health. Bend forward, look forward, normal breathing. 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. मंडूकासना। इसके बाद टेक ब्रीथ, गो अप। अंदर सांस लेते हुए ऊपर, देन हाथ आगे, नॉर्मल पोस्चर। सो वज्रासना, वज्रासन में बैठे हम सब लोग, हाथ आगे, मुट्ठी बांधो, ब्रीद इन, नाउ ब्रीद आउट, गो फॉरवर्ड। सांस बाहर छोड़ते आगे जाओ, दोनों हाथ को पेट के बगल में रख के दबाओ, आगे देखो, लुक फॉरवर्ड, पुट प्रेशर ऑन द एब्डोमेन, सिंपल ब्रीदिंग। अंदर सांस लेना छोड़ना, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Be in this posture for 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes daily. Mandukasana is very good for
all sort of metabolic disorders, especially diabetes. Improves the health of the pancreas. Regenerates the pancreatic cells. Your pancreas, which is not producing insulin, can start producing insulin if Mandukasana daily done properly. Understanding the science, like a yogi. Breathe in, go up. मंडूकासना. वेरी गुड. बहुत सारे बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं. Many of the children are doing with me. Very good. Now we will do Shashakasana. Anvit is doing, Kanika is doing. Very good. अभी शशकासन करेंगे. वज्रासन में जैसे बैठे ऐसे बैठो. अभी हाथ ऐसा सामने ले लो. Keep your hands like this. Breathe in and go up. Now breathe out and go forward. सांस छोड़ते आगे धरती तक हाथ पहुंचो. माथा जो है धरती को टच करेगा. इसी पोजीशन में रहना. शशकासना. नीचे सांस छोड़ते आना है. यहीं रह के नॉर्मल ब्रीदिंग करना है. सांस लेना छोड़ना, ऐसे ही रहना. 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स. Shashakasana is again very good for type 1 diabetes. Decreases the insulin resistance. Activates the pancreas to produce insulin. Shashakasana. Hair's posture like a rabbit. Forehead touching the ground, palms touching the ground. Putting the pressure on the abdomen. Simple breathing. Slowly breathe in and go up. Go back. Breathe out. Back to normal posture. Very good. ये कौन है? वैष्णवी, अन्वित, कनिका, and from Reach Healthcare, नरेश जी. We are all doing. We are all yogis. बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे सब. योगा करते हैं, रोज योगा करते हैं. तो और एक बार हम करेंगे शशकासना. वज्रासन में बैठे हैं. सांस अंदर लेते हाथ ऊपर करेंगे. सांस छोड़ते आगे झुकेंगे. माथा हाथ जो है धरती को सामने टच करेगा. पेट के ऊपर प्रेशर करते हुए इस पोजीशन में जाके सांस लेना छोड़ना. नॉर्मल ब्रीदिंग. 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट. शशकासन डायबिटीज में बहुत अच्छा है. इंसुलिन का रिक्वायरमेंट हमारा कम हो जाएगा. हमारा शरीर में पैंक्रियाज के जरिए हमारा इंसुलिन बनेगा. हम रोज योगा प्रैक्टिस करेंगे. हम अपना बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगे. डायबिटीज रहने के बावजूद हम अपना स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे. हम योगी हैं. 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट. शशकासना. ब्रीद इन, गो अप. सांस अंदर लेते ऊपर, हाथ नीचे. सो आज हमने 2 आसन सीखा जो फॉरवर्ड बेंडिंग है. पेट के ऊपर प्रेशर डालते हुए हमने करना सीखा. एक सीखा मंडूकासन, दूसरा हमने सीखा शशकासन. फ्रॉग पोस्चर एंड रैबिट पोस्चर. अभी हम उष्ट्रासन, कैमल पोस्चर, बैक बेंडिंग करेंगे. स्टैंड ऑन योर नीज. ये जो घुटना है ना, इसके ऊपर खड़े हो जाओ. कनिका, अन्वित, सब बच्चे. अभी जो है राइट हैंड ऊपर उठाओ सांस लेते हुए. लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ. राइट हैंड को लेके जो राइट एडी है, गो एंड टच. लेफ्ट हैंड को लेफ्ट. पीछे देखो. पुश योर टमी टू द फ्रंट. पेट को आगे धकेलो. पीछे देखो, गर्दन पीछे. दोनों हाथ, दोनों पांव नीचे. जो एडी है ना, राइट हैंड राइट एडी, लेफ्ट हैंड लेफ्ट एडी को पकड़ने का कोशिश.
इसमें हम क्या कर रहे हैं, पेट को आगे धकेल रहे हैं, गर्दन को पीछे। अगेन जो हमारा पैंक्रियाज है वो एक्टिवेट हो रहा है। करो उष्ट्रासन, दिस इज कॉल्ड एज कैमल पोस्चर। ऐसे ही रहो, उसी पोजीशन में रहो 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट। हम देख रहे हैं कौन कौन कर रहे हैं। वेरी गुड, सब बच्चे कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। योगी है, योगी बनो, निरोगी बनो, स्वास्थ्य के लिए योगा। इसी पोजीशन में रहना, उष्ट्रासन, कैमल पोस्चर। अगेन गुड फॉर डायबिटीज। सांस लेते हुए ऊपर नीचे। सो तीसरा हमने सीखा उष्ट्रासन, कैमल पोस्चर। पहला हमने सीखा मंडूकासन, फ्रॉग पोस्चर। दूसरा हमने सीखा शशकासन। तीसरा हमने सीखा कैमल पोस्चर। अभी और एक बार कैमल पोस्चर, उष्ट्रासन करो। घुटने के ऊपर खड़े हो जाओ। राइट हैंड गो अप, ब्रीद इन, गो बैक, टच योर एडी, हील। गर्दन पीछे, पेट आगे। बहुत सुंदर आसन, कैमल पोस्चर, उष्ट्रासन इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज। किसी को गर्दन में, पीछे कमर में दर्द है तो चला जाता है। वेरी गुड फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लो बैक एक एंड डायबिटीज। उष्ट्रासन, सिंपल ब्रीदिंग। गो अप, हाथ आगे, नीचे। वेरी गुड। आज हमने 3 आसन सीखा और अगले बार और सीखेंगे। धीरे धीरे हम सबको आसन सिखाएंगे। बहुत आसान है, अभी सीखोगे आगे आप सब लोग जाके योगी बनेंगे। आज एक हम प्राणायाम सीखेंगे। अभी हमने जो किया उसको बोलते हैं आसन, योगासन। अभी जो हम करेंगे प्राणायाम, सही तरीके से ब्रीदिंग, है ना, कैसे ब्रीदिंग करना है वो सीखेंगे। तो आज हम पहला सीखेंगे प्राणायाम, भ्रामरी, भ्रमर जैसा साउंड करता है ना वैसे। तो हमको क्या करना है, आंख बंद करना है, कान बंद करना है, बंद करके मुंह बंद करके ओम बोलना है। जब मुंह बंद करके ओम बोलते कैसे दिखेगा, है ना, मुंह बंद करके ओम बोलेंगे ऐसा साउंड आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 3 उंगली है इससे आंख बंद करेंगे, जो हमारा थंब है इससे कान बंद करेंगे, बंद करके हम बोलेंगे। सब बच्चे करेंगे मेरे साथ भ्रामरी, हमिंग साउंड। मजा आ गया ना। यहां जो है ना हमारा ब्रेन को ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, आंख को ब्लड सप्लाई अच्छा होता है, गर्दन को ब्लड सप्लाई। So Brahmari is a very good pranayama in which you are practicing Omkara, eyes closed and good supply, blood supply to brain. तो एक स्ट्रांग मस्तिष्क के लिए ये भ्रामरी बहुत अच्छा प्राणायाम है। रोज करो 5 मिनट। प्राणायाम हमको सही से सांस लेना सिखाता है। प्राणायाम टीचेस अस टू ब्रीथ प्रॉपरली। व्हेन यू ब्रीथ प्रॉपरली यू गेट गुड हेल्थ, स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड माइंड, कंसंट्रेशन बढ़ता है, स्टडी में कंसंट्रेशन बढ़ता है। और एक बार सब मिलके भ्रामरी करेंगे, दोनों कान बंद, आंख बंद, ओम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। योगासना, प्राणायामा, स्ट्रांग बॉडी, स्ट्रांग माइंड, अध्ययन में कंसंट्रेशन कैसे करना है और क्या क्या योगासन उसके लिए करना है, अगले महीने आखिरी रविवार फिर हम लोग आगे सीखेंगे। तब तक whatever we have learned today, every day you should practice.
So what are all the things we are going to practice every day till we meet next time? Yogic jogging, free hand exercise, Sukshma Vyayamas, postures in the sitting position, Mandukasana, Shashakasana, Ustrasana, Pranayama, Bhramri. So practice every day, रोज अभ्यास करो. अगले बार जब हम मिलेंगे और कुछ नया आसन सीखेंगे जिसमें हमारा अध्ययन में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसमें हमारा शक्ति बढ़ेगा, हम सब शक्तिशाली बनेंगे. तो सभी बच्चे मेरे साथ योगा के बहुत बहुत बधाई. आप सब लोग अच्छा योगी बनो. स्वास्थ्य जीवन का जो रास्ता हमने पकड़ा है इसको लेके आगे चलना है. हम और कुछ बहुत सीखते जाएंगे. नाउ इट इज ओवर टू Surbhi for the next session which she will be conducting, sharing the experience of our children who are doing a great work. So as you know, Surbhi is our role model type 1 diabetic. She is doing her MSc final year and she is a very good type 1 diabetic girl. Those of you who are younger can call as दीदी, और जो उनसे बड़े हैं अपने छोटी बहन की तरह उसको देखेंगे. ये सब हमारा एक फैमिली है, ये सब हमारा घर के बच्चे हैं, भाई बहन हैं. इसी भाव से हम सब लोग जुड़े हैं. सुरभि जो है सब बच्चों से मिलना, बात करना, नए बच्चों से बहुत सबको प्रेरणा देती है. और सुरभि जो है अभी सब बच्चों से आपसे मिलाएंगे. जो नए बच्चे हैं उनसे सीखेंगे. Those who are new will learn from Surbhi about the diabetic family, how happily we are all leading a wonderful life being diabetic, and many more. We keep on learning. Where I'll meet you again next month, last Sunday, with more information, more yogasana, more pranayama. So always take the help of Surbhi to connect with me. Over to Surbhi. Namaskar. Good morning, everyone. Namaskar. And first of all, a very happy Holi to everyone over here. Myself, Surbhi Chaudhary. I'm 24 and I'm type 1 diabetic for the last 14 years. And I'm living very happily with it. So today I'm here for a discussion session, experience sharing session of all the kids who are there today with us. So first of all, I would like to invite Prakriti, who is from Dehradun, to come over here and share her experience with all of us. Prakriti, please go ahead. Hello everybody, and I have very happy Holi to all of you. My name is Prakriti. I'm from Dehradun and I am 15 years old and I am diabetic from past 9 years. And my treatment is going from past 6 years from Ramakrishna Mission Hospital, Haridwar. And I've learned a lot from here, not only about diabetes, but about the way of living a healthy lifestyle and the importance of being healthy in our life. And Maharajji, Surbhi Didi, Mayank Bhaiya and other children have helped me a lot in this journey. Earlier, from where my treatment was going, they stopped everything to eat and I used to eat bitter things like bitter gourd juice, kada and all. And I also was not able to manage my blood sugar properly. But after talking to Maharajji, Surbhi Didi and other children, I got to learn that how to manage our blood sugar. And they told me that we can manage our blood sugar by doing yoga and exercise and taking healthy diet, healthy, balanced and nutritious diet. And now I'm able to manage my blood sugar and inject insulin on my own. And the very best thing I like in this group is that we can ask our queries at any time to anyone, and they are always there to solve our problems. And even in the monthly support group meeting, I got to learn a lot of new things here, and I get inspiration that we should not panic from any problem and face every situation in our life strongly. And according to me, diabetes is not a disease, it's a science. It's not a science, it is an art. Thank you. Managing diabetes is not just science, but it is art. ये जो हमारा ब्लड शुगर ऊपर नीचे होता है उसके लिए साइंस का तो ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ साइंस सफिशिएंट नहीं, लेकिन उसको मैनेज करने की कला. सो इट्स एन आर्ट टू मैनेज डायबिटीज़.
Thank you, Prakriti, for a very good message. Hope your message has inspired many to learn from you. So, any new child who is Very interested nicely can always talk to explained. Prakriti or to Surbhi. Yeah, thank you, Maharaj. Very nicely explained, Prakriti. You are a role model for all the type 1 diabetic kids over here. You're doing really good with your life. All the very best. Now, we move forward to another participant who is Karthik. He's from Haridwar. Karthik, can you please unmute yourself? Karthik Kukreja. Hello. Yeah. Go Yes, ahead. Karthik, bolo. Good morning to all of you. My name is Karthik Kukreja. I am studying class 6th B. आज सबको हैप्पी होली। मैं 11 साल का हूँ। मेरे को 8 साल से डायबिटीज है और मेरा इस बार हीमोग्लोबिन 8.2 आया है। मेरी कोशिश है मैं आप सबको अपनी सारी बातें बता सकूं। मैं इस पर पूरी कोशिश है मैं 7% लेकर आऊं। और मैं आपसे सबको ये कहना था जो ग्रुप में नए आए हैं, ये डायबिटीज से डरिए मत। ये कोई बीमारी नहीं है, ये किसी को भी अपने आप हो जाती है। वो प्रॉपर अपने डाइट रखो, इंसुलिन लगाओ, शुगर टेस्ट रोज 3 बार करो। बस धन्यवाद है सबको। थैंक यू सर। वेरी नाइस कार्तिक। तो आपका HbA1c इस बार 8.2% है। हाँ जी दीदी। वेरी गुड। पहले कितना था? पहले 10 आया था। तो बहुत हार्ड वर्क करा है आपने इस बार। नेक्स्ट टाइम और ओके ठीक है। ओके दीदी। ओके। और कुछ आप बताना चाहेंगे कि आपको कैसा लगता है बीइंग अ डायबिटिक? क्योंकि आज हाँ हमारे साथ और दीदी। भी नए बच्चे जुड़े हैं जो आप ही की एज के हैं, तो आप उनको कोई ओके मैसेज देना चाहेंगे? हाँ दे दूंगा। अन्वित जो भाई, ग्रुप में नए अन्वित, बच्चे हैं अन्वित, वो डरिए अन्वित, मत। हाँ, बोलो। जैसे मैं करता हूँ ना ऐसे ही करना। एक्सरसाइज करो, योगा करो, इससे डायबिटीज ना उसकी इंसुलिन भी कम हो जाएगी। बस सुरभि दीदी हो गया। ओके, थैंक यू कार्तिक। सो कार्तिक एक बहुत ही अच्छा बच्चा है जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से अपनी ब्लड शुगर मैनेज कर रहा है। छोटे बच्चे थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं, पर स्टिल उसकी मदर उसको बहुत हेल्प करती है कि उसकी ब्लड शुगर हमेशा लेवल में रहे। तो इस बार उसका A1C 8.2 है जो कि काफी अच्छा है। तो आई होप कार्तिक आगे भी आप इसी तरीके से हम सभी को अपनी बातें बताते रहेंगे। थैंक यू कार्तिक। सो नेक्स्ट वी हैव अन्वित प्रधान हु इज फ्रॉम गुड़गांव, जिन्हें अभी पिछले 1 साल से डायबिटीज हुई है। अन्वित, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू प्लीज कम हियर एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, ask your questions as you're new to this group. So just start with your introduction and go ahead. Anvit Pradhan. Good morning, everyone. My name is Anvit Pradhan. My school is Rayan. My class is third. My sugar level is very good. अभी बताओ, लास्ट ईयर मुझे अगस्त में हुआ। ये डायबिटीज मेरे को लास्ट अगस्त में हुआ। आपकी हॉबी बताओ क्या क्या है? मेरी हॉबीज बैडमिंटन और आर्ट है। ड्राइंग करना और आपका HP अब की बार 8.5 आया है। मेरा HP अब की बार 8.5 आया है। लास्ट टाइम 6.8 और लास्ट टाइम 6.8 था। आप योगा करते हैं? मैं सुबह 7 बजे उठ के योगा करता हूँ और अब मैं अच्छा फील करता हूँ। Okay, thank you so much, Anvit.
सो आज हम सब यहाँ पर मिले हैं कि जिससे कि आप और भी बच्चों से मिल सकें। तो यहाँ पर जैसे आपने अभी देखा कार्तिक ने बात करी, ऐसे ही हमारे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके एज ग्रुप के हैं। तो आप सभी से बातचीत करिए, सभी को अपने फ्रेंड्स बनाइए। कार्तिक, कार्तिक आर यू देयर? कार्तिक, कार्तिक आप ही नया माइक बच्चा है अनम्यूट हमारे करो, ग्रुप में। माइक अनम्यूट करो। कार्तिक, आप जो है ना अनवित के साथ फ्रेंडशिप बना लो, रोज एक बार बात करो। कार्तिक का मम्मी अनवित की मम्मी से बात करेंगे, कार्तिक अनवित से बात करेंगे। कार्तिक, अपना माइक अनम्यूट करो। ठीक है, तो बाद में आपस में, हाँ कार्तिक अनवित से। सर मैं वॉशरूम करने गया था, वॉशरूम आ रही थी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम कार्तिक। अनवित से फ्रेंडशिप बना लो, ठीक है। यस काउंट। हेलो हेलो हाँ अनवीर, कार्तिक, आप कैसे हो अनवीर? ठीक हूँ। कौन सी क्लास में हो आप? 3rd क्लास। ओके, और आपको हैप्पी होली। आपको भी हैप्पी होली। कार्तिक, आप कितने क्लास में थे जब आपको डायबिटीज हुआ था? कौन सा क्लास में थे? मैं तो क्लास में ही था सर, मैं 3 साल का था। अभी कौन से क्लास में हो? मैं 6th में। देखो, जब कार्तिक को टाइप 1 डायबिटीज हुआ था अन्वित, वो तुमसे छोटा था, अभी तुमसे बड़ा बन गया है। जब उसको डायबिटीज हुआ था तो वो पता ही नहीं था, उसका मम्मी, उसके पिताजी, उसके नाना नानी सब लोग आके रोते थे हमारे बच्चा को क्या हो गया, तो उसको पता ही नहीं था। तो वो बहुत छोटा था, लेकिन उसका मम्मी, उसका सब घर में सब देखभाल किया, अभी वो खुद सीख गया। अभी वो अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करता है। देखो कितना स्ट्रांग है, दिखाओ तुम्हारा बॉडी दिखाओ। हाँ, तुम भी ऐसे स्ट्रांग बनोगे। तो कार्तिक के साथ फ्रेंडशिप रखना। और सुरभि, या आप बताओ। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू कार्तिक एंड अनवित। अनवित, आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? हाँ हाँ जी। हाँ जी। पूछिए। पूछो। जब मेरी शुगर नॉर्मल होती है तब मेरे को चक्कर फील होता है, कई बार होता है। तो इसका वजह ऐसा कुछ खास नहीं है, तो उसको आपको अपना स्ट्रांग बॉडी को बनाना है। तो रोज योगा प्राणायाम करेंगे। अगर शुगर लो होता है, उसके वजह से चक्कर आता है, तो शुगर ठीक करने के लिए आपको जो हमारा एक हेल्दी पैकेज होता है जिसमें बादाम किशमिश होते हैं, उसको 5 ग्राम खाना पड़ता है। अगर शुगर नॉर्मल है, कुछ नहीं करना है आपको, और थोड़ा योगा प्राणायाम करना है। मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ज़्यादा फल खाना है, ज़्यादा हरी सब्जी खाना है, उसमें जो है आपको ताकत मिलेगा, अपना कमजोरी चला जाएगा। और कुछ पूछना है? मैं ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाता हूँ और लंच में मैं पहले सैलेड ही खाता हूँ। वेरी गुड, सब बच्चे ऐसे करना है। ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाना है, लंच में ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाना है, थोड़ा रोटी, शाम को दाल रोटी चावल जो भी खाना है। अपना खाने का हिसाब से इंसुलिन लगाना है। अगर फ्रूट्स ज़्यादा खाएंगे, वेजिटेबल ज़्यादा खाएंगे, इंसुलिन कम लगेगा और उसमें एनर्जी मिलेगा। मैं मैंगो खा सकता हूँ? खा सकते हैं, उसके लिए इंसुलिन लगाना पड़ेगा, सुरभि से बात करना पड़ेगा, कार्तिक से बात करना पड़ेगा, कितना बड़ा मैंगो है, कितना खा रहे हैं, उसके लिए आपका इंसुलिन कितना रिक्वायरमेंट है, वो इंसुलिन लगा के खा सकते हैं। आप सब खाना खा सकते हैं। एक कड़वी दवाई ले रहा हूँ और उससे ना मेरा इंसुलिन थोड़ा बहुत तो छूट गया है। मैं हमेशा जब मैं कुछ खाता हूँ तब मेरे को कभी कभार लगता है इंसुलिन। तो ज़्यादा फ्रूट्स खाने से, ज़्यादा वेजिटेबल खाने से आपका इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। जैसे सुरभि का इंसुलिन पहले 60 यूनिट्स पर डे लगता था, अभी उसको 20-30 यूनिट्स के बीच में अपना शुगर कंट्रोल हो जाता है। तो ज़्यादा फ्रूट्स खाएंगे, ज़्यादा वेजिटेबल खाएंगे तो इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, लेकिन जब खाने की इच्छा हो इंसुलिन लगा के खाना है। आपको मम्मी को कुछ पूछना है, आपका पिताजी को कुछ पूछना है? मम्मी एंड फादर कैन टॉक टू सुरभि। यस। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली हाँ जी, वही प्रॉब्लम आ रही थी कई बार, ये जैसे शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ रही है और फिर भी ये मतलब चक्कर आते हैं इसको कई बार यहाँ पे जैसे ऑनलाइन स्टडी चलती है तो यहाँ पे इसको पेन होता है पीछे, कई बार बोलता है ये। तो वो हम उस टाइम शुगर चेक करते हैं तो अभी नॉर्मल दिखाता है, फिर भी हमें लगता है कि अभी इसके रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं, अभी 2-3 दिन पहले हमने पूरा चेकअप करवाया था तो वो अभी नॉर्मल है सब, बट फिर भी हमें लगता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पीछे कई बार बोलता है ऑनलाइन स्टडी के टाइम। तो एक ही जगह में बैठ के एक ही पोजीशन में ऐसे बैठने से यहाँ पे जो मसल है उसका पेन है, वो यहाँ ब्लड सप्लाई सही नहीं हो रहा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए हमने क्या योगा सिखाया आज। करो अन्वित, सब बच्चे करो। जो हम ऑनलाइन क्लास में घंटे घंटे ऐसे ही बैठे रहते हैं उसके वजह से दर्द, वो है मसल पेन। यो आसन करने से वो दर्द चला जाएगा। योगा या थेरेपी, योगासन एक इलाज है, ये सबसे बड़ा दवाई है, सब दर्द को खत्म कर देगा, ये स्ट्रांग बनाएगा। सो दिस इज द ट्रीटमेंट। ऑनलाइन क्लास में एक ही जगह में नहीं बैठना है, हर एक क्लास के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेके योगासन प्राणायाम करना है, बॉडी को फ्री हैंड एक्सरसाइज करना है, उससे दर्द चला जाएगा। और प्राणायाम करने से एनर्जी मिलता है, ब्राह्मरी। देखो एनर्जी मिलता है, कमजोरी चला जाता है। सब बच्चे, सुरभि, कार्तिक, सब योगा करते हैं, तो आप भी करोगे, आप भी स्ट्रांग बनोगे। रोज अभ्यास करो, अगले महीने फिर हमको बताओ कैसे आपको लग रहा है। और कोई प्रश्न पूछो। ये इसने योगा स्टार्ट किया है सुबह वहां हरिद्वार से आने के बाद, तब से ये काफी अच्छा फील कर रहा है पहले से। और भी अच्छा होगा, 1 महीना रोज करेगा और अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्ट है उसको योगा करने में, वो आराम से सीख जाएगा। हम धीरे धीरे सिखाएंगे। और कार्तिक, सुरभि रोज करते हैं, उन लोगों से रोज वो साथ में कर सकता है। 4 बच्चे 5 बच्चे अपना ग्रुप बना के रोज करो साथ में, एक टाइम फिक्स कर लो, बहुत अच्छा है। सुरभि, अन्वित को मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। अन्वित, अगर आपकी ब्लड शुगर सही चल रही है और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर ब्लड शुगर, उसका कोई और रीजन हो सकता है। क्योंकि आपको अभी डायबिटीज हुई है तो आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो आपके पेरेंट्स का, आपका दिमाग सीधा वहीं जाता है कि शुगर की वजह से हो रहा होगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपकी ब्लड शुगर बिल्कुल सही है, बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपका मेन काम क्या है कि सिर्फ ब्लड शुगर को लेवल में रखना, तो वो हमने आपको सिखाया है कैसे रखनी है, कि जितना खाएंगे उसके लिए उतना इंसुलिन लगाना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, प्राणायाम करना है। तो अगर आपको कोई बीच में प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में मैसेज डालिए, मुझे मैसेज करिए, कार्तिक को मैसेज करिए, आज आपका न्यू फ्रेंड बना है कार्तिक, तो सब आपकी हेल्प करेंगे। अगर एक टाइम पे कोई एक पर्सन अवेलेबल नहीं होगा तो दूसरा पर्सन आपको बताएगा। तो जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ डायबिटीज, उसकी और कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो इतना टेंशन नहीं लेना है इसको लेके, हम इजीली मैनेज कर सकते हैं ब्लड शुगर को, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। राइट? ओके अन्वित। तो अगले महीने जब मिलेंगे और स्ट्रांग बनना, रोज योगा करना, और रोज कार्तिक से, सुरभि से मैसेज करो, बात करो, अपना योगा का फोटो भेजो ग्रुप में। तो जो हमारा ग्रुप बना है इसमें अपना ब्लड शुगर नाप के उसमें भेजो, मेरा आज फास्टिंग इतना है, अपना खाने का प्लेट भेजो, अपना योगा का भेजो, अपना स्टडी करने का। सो आपस में एक दूसरे से सब शेयर करो। ओके सुरभि? ओके, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू सो मच अन्वित। अभी और कोई बच्चा है जिसको कुछ शेयर करना है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं? क्योंकि आपको आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इतने सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कनिका, Anyone? कनिका कुछ पूछना चाहिए? कनिका, कनिका, कनिका बहुत अच्छी बच्ची है, ये बहुत अच्छा योगा करती है, खाने में बहुत अच्छा कंट्रोल रखती है। उसका बीच में वेट बढ़ गया था, उसको वेट बढ़ा था उसलिए डायबिटीज हुआ था। उसको टाइप 1 डायबिटीज नहीं है कनिका को। कनिका को वेट बढ़ गया था गलत खाना खा के, तो उसके लिए उसका शुगर बहुत बढ़ गया था। फिर हमारे पास जब आई, उसको हमने सही तरीके से खाना, योगा, प्राणायाम सिखाया, अभी शुगर नॉर्मल है। कनिका बात करो आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपना वीडियो ऑन करो। 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 अपना
कनिका का आवाज हमको सुनाई नहीं दे रहा है। कनेक्टिविटी माइट बी टाइप 2 डायबिटीज है। बोलिए। महाराज जी मुझे टाइप 2 डायबिटीज है, तो क्या मैं मैंगो खा सकती हूँ? खा सकते हैं, थोड़ा कम। आपको जो है ना वजन बढ़ा हुआ, उसके लिए शुगर बढ़ रहा है। अगर आप वजन कम करेंगे तो आपको कोई दवाई लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। खा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। ठीक है। ओके। और कुछ भी प्रश्न है तो आप सुरभि दीदी से फोन करके भी पूछ सकते हो। रवि बोरा, रवि बोरा। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ऋषभ बोरा। ऋषभ रोज योगा करता है? कहाँ है ऋषभ? यस सर। ऋषभ रोज योगा करता है? यस सर। अपना Very शुगर good. का रोज नापना, इंसुलिन लगाना सब ठीक कर रहा है? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है ऋषभ। तो We also have वैष्णवी। वैष्णवी, मैं नहीं आऊंगी, वीडियो नहीं चल रही। वैष्णवी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। आप लोग रोज योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना डाइट का ख्याल रख रहे हैं, अपना शुगर बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि आप रोज आपस में एक ग्रुप में एक दूसरे से बात करो। और भी आपके फ्रेंड्स हैं, बड़े हैं जिनको डायबिटीज नहीं, उनको भी आप मीटिंग में बुला सकते हैं योगा सीखने के लिए। सो यू कैन मेक फ्रेंड्स विथ दोज हु डजंट हैव डायबिटीज। दूसरों को डायबिटीज नहीं है, उसको भी आप अपना फ्रेंड्स को इस ग्रुप में ला सकते हैं। हम यहाँ पे जो है स्वास्थ्य की बातें करते हैं, इंटीग्रेटेड वेलनेस साइंस एंड प्रैक्टिस। सो आई रिक्वेस्ट all my type 1 diabetic children and parents to bring in your friends and relatives in the next meeting. Share your personal experience. Teach them about healthy way of living. इसी मैसेज के साथ सुरभि, थैंक यू सो मच महाराज जी। तो आज बहुत ही अच्छा लगा सभी बच्चों से बातचीत करके। नाउ आई विल हैंड ओवर द माइक टू अनिर्बान सर। सर प्लीज गो अहेड विद द सेशन। Yeah, thanks, Suvi. Thank you, Swamiji. Vaishnavi wants to speak. I'll ask her to unmute. ओके वैष्णवी। Yes. अपनी वीडियो ऑन करिए। हाँ, वीडियो ऑन कीजिए। वैष्णवी। हाँ, वेरी गुड। हेलो वैष्णवी। हेलो दीदी। हेलो दीदी। गुड मॉर्निंग। हेलो। आज आपने बहुत अच्छा योगा करा। रोज करते हो योगा? कभी कभी करती हूँ। कभी कभी करते हो। चलो सबको अपने बारे में बताओ, सबको अपना इंट्रोडक्शन दो छोटा सा। मेरा वैष्णवी है। किस क्लास में हो, आपको क्या क्या पसंद है, सब बच्चों को बताओ। My name is Vaishnavi Rawat. Class second. मुझे डायबिटीज 1 साल से है। वेरी गुड। और अपना शुगर चेक खुद करती हूँ। वेरी गुड। मैं फ्रूट्स खाती हूँ। और आपको क्या क्या पसंद है? हेलो दीदी बोलो। हेलो दीदी। हेलो, आपको क्या क्या पसंद है, आपकी हॉबीज क्या क्या है? मुझे ड्राइंग करना पसंद है। मुझे ड्राइंग करना पसंद है और डांसिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सबसे कुछ पूछना चाहेंगे? कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो 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 हेलो। हेलो वैष्णवी, आपका कोई क्वेश्चन है? आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे वैष्णवी? हेलो आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे? हेलो हेलो।
ज्योति भाटिया, कृति भाटिया, Kriti Bhatia, do you want to ask anything? No, Di. वेरी गुड। Anyone else has any questions? और किसी कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कोई बच्चा है, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट करेंगे हम आपको। अगर किसी को कुछ पूछना नहीं तो नाउ आई रिक्वेस्ट अनिर्बाण जी हमारे रीच हेल्थ केयर सेरेमेड के वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं। आप सब बच्चों के लिए बहुत सोचते हैं, सब हम बच्चों को कैसे आगे ले चलें, उनको कैसे शक्तिशाली बनाएं, उनको कैसे और अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं पूरा टीम को लेके। अनिर्बाण जी खुद एक बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़ा जॉब मार्केटिंग में था, अभी भी कर रहे हैं, और उनका अपना एक एनजीओ भी है जो निस्वार्थ सेवा भाव से बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं। अक्षरदा फाउंडेशन नाम से उनका एक स्कूल भी चलाते हैं, बच्चों से रोज़ मिलना बात करना उनका रहता ही है। तो अपना पूरा अनुभव को लेके आप सब लोग कुछ बातें बताएंगे जिसमें हमारा जीवन और अच्छा सुंदर बना सकते हैं। ओवर टू अनिर्बाण। थैंक यू सोम जी। थैंक यू सर सुरभि, बहुत अच्छा सेशन था आपका, और बहुत अच्छे से आपने बात करी बच्चों से। मैं जब भी ये सेशन में पार्टिसिपेट करता हूँ, मुझे यही एक ही चीज लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग और जुड़े इस पर्टिकुलर मंच से, क्योंकि इतना प्रोत्साहन और इतना इतने अच्छे तरीके से आप लोग पूरे सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। मैं तो आउटसाइडर हूँ, मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में स्वामी जी से जब मेरी मुलाकात हुई पहली बार, तब मुझे पता चला कि टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, मुझे मालूम नहीं था। तो एक तो इस सब्जेक्ट के बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और लोगों को जानना जरूरी है कि टाइप 1 डायबिटीज होता क्या है। और दूसरा, इस पर्टिकुलर जो कम्युनिटी में जो लोग हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे दिक्कत सभी को है। सुरभि अभी एक यंग लेडी है, वो एमएससी कर रही है, और उसको भी करियर अपना बनाना है, उसको भी अपना आगे का करियर सोचना है। तो ये सब सोच जैसे सब में होती है, ये आप लोगों में भी होती है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं जैसे सोचता हूँ, वो ये है कि हो सकता है हम लोग जैसे नॉन टाइप 1 डायबिटीज लोग हैं, नॉन डायबिटिक लोग हैं, हम लोग अपना करियर जिस तरह से बना पाए, हो सकता है आप लोगों को वहां पे कहीं पे थोड़ा बहुत चैलेंज आएगा। लेकिन इसमें ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं, बाकी लोग इतना अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। दिस काइंड ऑफ थिंग विच इट कैन हैपन। तो इसी को लेके आज मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं सोचा आपसे शेयर करूं। तो सुरभि, आई जस्ट शेयर द प्रेजेंटेशन, एंड मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप कुछ इसमें थॉट्स हैं जो हम अपना एक सेक्शन है जो लर्निंग सेक्शन बोलते हैं, उसमें हम ये इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज का जो लर्निंग सेशन है वो है पैशन और प्रोफेशन। अब हम बोलेंगे कि अब मैं कोशिश करूंगा पैशन को एक्सप्लेन करने का। पैशन का मतलब हिंदी में अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है जुनून। आपको जिंदगी में कौन सी चीज सबसे पसंद है? किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को गिटार बजाना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को क्रिकेट पैशन है, कोई माउंटेनियरिंग करना चाहता है। दुनिया में हर लोगों के डिफरेंट डिफरेंट पैशंस होते हैं। किसी किसी को, हम लोगों को एक से ज्यादा पैशन होता है। वी हैव मोर देन वन पैशन समटाइम्स। तो एक हुआ पैशन, और दूसरा हुआ प्रोफेशन। प्रोफेशन वो होता है जहां से हमारी रोजी रोटी चलती है। हम सिर्फ पैशन को लेके जिंदगी बिता नहीं सकते, क्योंकि पैशन से अगर हमारा रोजी रोटी नहीं चला तो हमारा पैशन फिर साइड में हो जाएगा, हमारा व्यवसाय प्रोफेशन सामने आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आए कि हमारा पैशन जो है वो अगर प्रोफेशन बन जाए, तो फॉर एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल हैं दुनिया में जिन लोगों ने अपना पैशन को
प्रोफेशन बना लिया। सबसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो मैं, मेरे ही उम्र के हैं, हम उम्र हैं, मेरे उम्र के हैं, आपने नाम सुना होगा, मैं उनका म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन हूँ, A.R. रहमान साहब। वो वो भी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, और बट उनको कहीं लगा कि नहीं, म्यूजिक मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है और मैं इसी को परस्यू करना चाहता हूँ। तो आज दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिशियन में उनका नाम आता है। तो वो एक उदाहरण है जिन्होंने अपना पैशन को एक प्रोफेशन बना लिया, अपने जुनून को एक व्यवसाय में परिवर्तित कर लिया। ये कब पॉसिबल है? अगर ये ऐसा होता है तो ये सबसे अच्छा सिचुएशन होगा हम हर किसी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सुरभि जी आज हमारे साथ कॉल में है, तो सुरभि जी मैं आपसे जस्ट पूछना चाहूंगा कि आपको सबसे अच्छा क्या चीज लगता है? मैंने आपको अगर मैं बोल दूं कि नहीं, आप फ्री हो, आपका सारा जिम्मेदारी हम लोग ले लेते हैं, आप क्या परस्यू करना चाहोगी? I love traveling the most. I love exploring new places. एब्सोल्युटली। तो आप सोचिए, अगर आपका ये पैशन जो आप ट्रैवल करना चाहती हो, पूरी दुनिया घूमना चाहती हो, पूरा भारत घूमना चाहती हो, लोगों से मिलना चाहती हो, लोगों का यू वांट टू लर्न मोर अबाउट different places, their food, their customs, people. It's an amazing passion. बट अगर इसी पैशन को आपको एक मौका दिया जाए कि ये आपका डेली रूटीन हो जाए, तो आप क्या इसको परस्यू कर पाओगी? Actually, I have some other plans, but if I get this option, I will definitely look forward to it. ओके, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको चॉइस दिया जाए कि आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से घूमने को मिल रहा है, आप नए नए लोगों को मिल रहे हो, ये अगर दे दिया जाए ऑप्शन, तो आप जरूर उसको अवेल करोगी, है कि नहीं? है ना? तो हमारे सबके लिए वही लागू होता है। अगर हमें जो चीज पसंद है, अगर वो हमें करने दिया जाए, तो हम उस चीज को पूरे जोर से, पूरे फुल एनर्जी के साथ हम उसको परस्यू कर सकते हैं। और उसमें जो हम चीजें सामने लेके आएंगे, जो द थिंग्स विच विल ब्रिंग आउट, वो इतना बेहतरीन होगा, इतना अच्छा होगा, इतना स्ट्रांग होगा कि सामने वाले जो है उसको देख के चकित रह जाएंगे कि भाई कोई ऐसा सोच भी सकता है। तो इसी सुरभि के इस प्रोफेशन को, मैंने पैशन को अगर हम बोले कि उसको अगर हम प्रोफेशन बनाना है, तो किस तरह से हम इसको प्रोफेशन बना सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दिस इज द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक। हमारा पैशन कैसे प्रोफेशन में तब्दील हो सकता है, हमारा जुनून जो है वो हमारे व्यवसाय में, हमारे रोजी रोटी में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, हम कैसे अपने पैशन से अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। आज ये जो कोविड, कई लोग अच्छा बोलते हैं, कई लोग बुरा बोलते हैं, लेकिन देखिए दुनिया में कई सिचुएशन ऐसे आते हैं जिसके ऊपर में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कोविड जब आया तो हम में से कोई कुछ कर नहीं पाया, वो है हमारे बीच में, हम लोग बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी है वो एक सिचुएशन है हमारे सामने। आपको जब पता चला कि आपको टाइप 1 डायबिटीज है, आप भी उस सिचुएशन को, आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है अदरवाइज उस सिचुएशन को हैंडल करने का। सेम वे, अगर आपका कोई पैशन है और अगर आप उसको प्रोफेशन में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको ऐसा कुछ कन्वर्ट करना चाहते हैं कि वो आपको रिटर्न्स दे, वो आपको रेवेन्यू दे, जिससे कि आपकी रोजी रोटी चल सके, तो ये टाइम से अच्छा टाइम और कोई नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के दिन में हम लोग सब ऑनलाइन हैं, हम लोग दुनिया के हर कोने में बैठे हैं, लेकिन हम इकट्ठे होकर अपना थॉट शेयर कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। तो एक पैशन जो मुझे है, मैं अपने बारे में कहता हूँ, मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग का, या मुझे कोई चीज को अच्छे तरह से प्रेजेंट करने का एक पैशन है। मैं इस पैशन को इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सक रहा हूं, और इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है, और मैं कई लोगों को इसका बेनिफिट भी दे पा रहा हूं। तो इस हालात में ये पॉसिबल है कि हम उस चीज को कर पाए, लेकिन आज से 3 साल पहले ये सिचुएशन नहीं था। तो सिचुएशन आज बन गई है मेरे लिए कि मैं अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन बनाऊं और आप लोग से शेयर करूं। तो
ये मेरे लिए व्यवसाय बन सकता है कि कुछ लोग हो सकता है मुझे बोले कि आप हमारे लिए अच्छा प्रेजेंटेशन बना दें, आपको कितना पैसा चाहिए बताइए, मैं आपको देने को राजी हूँ। तो मेरा ये व्यवसाय बन गया, मेरे मेरे इससे मेरी रोजी रोटी चल सकती है। अब सुरभि का केस लें, अगर सुरभि को बोल दिया जाए कि सुरभि आप जब ट्रैवल करोगी तो आप एक छोटा सा कैमरा ले लो अपने साथ में, और जहां जहां जाती हो अच्छे अच्छे पिक्चर खींचो, छोटी छोटी वीडियोस बनाओ, और लोगों से जब मिलो छोटा छोटा इंटरव्यू लो, और उनके खान पान के बारे में पूछो। एक बढ़िया सा 20 मिनट का हम प्रोग्राम बनाएंगे आपके हर ट्रैवल पे। तो अभी सुरभि जो है हरिद्वार से शी ट्रैवल्स टू से कलकत्ता। अब कलकत्ता सुरभि के नजर से वो, अब जब वो देखेगी हावड़ा ब्रिज देखेगी, वो बेलूर मठ देखेगी, ये सब जगह जब देखेगी तो उसका एक खुद का नजरिया होगा, और वो जब वीडियो के फॉर्म में आएगा सबके सामने तो हम बोलेंगे कि सुरभि नहीं, आपने कलकत्ता पे वीडियो बनाया, अब आप कहाँ जाना चाहोगी? तो सुरभि बोलेगी नहीं मुझे चेन्नई जाना है। अच्छा चेन्नई जाओगी, तो चेन्नई जब जाओगी तब ये और एक वीडियो बनाओ, और हम जो है आपको इस वीडियो बनाने का हम पैसा देंगे। और क्योंकि ये कई लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज को, आपको हम ये काम करने के लिए, ये एक्टिविटी करने के लिए, जो कि आपका जुनून है, जो कि आपका पैशन है, हम आपको पैसा देंगे। तो आपका कहीं ना कहीं आपका जुनून जो है वो प्रोफेशन में परिवर्तित हो रहा है। जैसे मेरे केस में मैंने बताया, मुझे प्रेजेंटेशन बहुत पसंद है, मुझे कोई भी आइडिया को लोगों के सामने लाना पसंद है। इस चीज को कोई मुझे अगर कहे कि इसके लिए मैं आपको पैसे देने को राजी हूं, तो मेरा वो व्यवसाय बन गया। और व्यवसाय कोई गलत बात नहीं है, कोई अच्छी बात है, क्योंकि उससे मेरी रोजी रोटी चल रही है, मेरी दिनचर्या चल रही है, मैं और अच्छा काम कर पा रहा हूँ। इसी वजह से मुझे ये काम करना एक तो पसंद है, और मुझे इससे पैसा भी मिल रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन बनाना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाउ कैन आवर पैशन बिकम आवर प्रोफेशन? मैं पहले भी इस चीज के बारे में बोल चुका हूं कि इन सब के पीछे एक पर्टिकुलर चीज मौजूद है, वो है हम किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते हैं जो भी हम काम करते हैं। एक पैशन जो है वो अपने अंदर से आती है। जैसे मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ, सुरभि ने कहा, वो उसके अंदर से है। लेकिन अगर वो उसको हम पर्पस बना लें कि हम ट्रैवल करेंगे, और ट्रैवल करते वक्त हम ये चीज करेंगे जो चीज लोगों को पसंद आएगी, और लोग उसके वजह से मुझे पैसा देने को राजी होंगे। तो मैंने ट्रैवल को एक पर्पस बना लिया, और उस पर्पस पे मैं इतना कायम हूं क्योंकि वो मेरा पैशन है कि मैं उसमें बहुत अच्छा काम कर पा रही हूँ, और मैं लोगों के सामने जब ला रही हूँ लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो आई एम वेरी स्ट्रांग इन माई पर्पस, मेरा पर्पस स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग हो गया। तो मैंने जब पर्पस अपना स्ट्रांग कर लिया, और मेरे माता पिता जो है इस चीज से राजी हो गए हैं, और वो कह रहे हैं, अब मेरे जितने साथी हैं, दोस्त हैं, मेरे जितने वेल विशर्स हैं, सब बोल रहे हैं कि हाँ सुरभि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, आई थिंक ट्रैवल इज वेरी गुड, एंड द वीडियोस व्हाट यू मेक वी लव दोज वीडियोस, वो वीडियोस बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत पसंद है वो वीडियोस। तो आपको एक समाज जो है आपको एक ऑटोनॉमी दे रहा है, मतलब आपको फ्रीडम मिल रही है अपने पैशन को परस्यू करने के लिए, अपने पर्पस को परस्यू करने के लिए। ये इससे बेहतर और सिचुएशन नहीं हो सकता। लेकिन ऑटोनॉमी जो है वो आसानी से मिलती नहीं है, वो मिलती तभी है जब आप लोगों को कन्विंस कर सको अपने पर्पस स्टेटमेंट से कि मैं कितना इस चीज को कर पाऊंगी और मैं इस चीज को कितना आगे बढ़ा पाऊंगी। उससे लोग जब कन्विंस हो जाएंगे तब आपको वो ऑटोनॉमी देंगे। ऑटोनॉमी ऑटोमेटिकली मिलती नहीं है, वो लेना पड़ता है। और तीसरा चीज है, अब जब मैं वीडियो बनाना चालू करूंगी तो पहला वीडियो जो है थोड़ा सा एमेचर रहेगा, दूसरा वीडियो बेहतर होगा, उसके आगे वाला वीडियो और बेहतर होगा। मुझे धीरे धीरे इस चीज में मास्टरी मिलेगी। हो सकता है मैं अगला डेस्टिनेशन मेरा लंदन हो या न्यूयॉर्क हो, मैं वहां जाऊंगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी, और वो वीडियो जो है हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग देखेंगे दुनिया भर से। मुझे मास्टरी मिल गई है। अब जब मैं ये तीनों चीज कर पाऊंगी, ये जो मेरा पैशन है ये मेरे प्रोफेशन में 100% तब्दील होगा, और मैं अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ पाऊंगी इस पूरी चीज को लेके। अब मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये भी मेरे ही समकालीन है। ये आई एम बॉर्न इन 1969, ही इज बॉर्न इन 1967। हिज नेम इज नागेश कुकनूर। अब नागेश कुकनूर, आप लोगों ने लोगों ने नाम सुना है नागेश का? नहीं सुना होगा, आप कोशिश कीजिए। ही इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म मेकर्स ऑफ इंडिया, जो कि बहुत रियलिस्टिक फिल्म बनाते हैं।
He is basically an engineer, studied masters in University of Georgia. यूएस में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनको जुनून था फिल्म मेकिंग का, उनको जुनून था मूवीज बनाने का। तो उन्होंने नौकरी करते करते उन्होंने फिल्म मेकिंग सीखी यूएस में, प्रोफेशनली कोर्स ज्वाइन करके उन्होंने सीखा फिल्म मेकिंग। जैसे सुरभि के केस में मैं बोलूंगा वीडियोग्राफी सीख सकती है, वो ट्रैवल जर्नल्स देख सकती है, लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं ट्रैवल्स में वो कर सकती है। तो इन्होंने भी फिल्म मेकिंग सीखा। फिल्म मेकिंग सीखने के बाद ये आज इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन रियलिस्टिक फिल्म मेकर्स हैं। इन्होंने इंडिया आने के बाद अपनी पहली पिक्चर बनाई जो कि बहुत हिट हुई आज से 20 साल पहले। उसका नाम था हैदराबाद ब्लूज, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक फिल्म। वो एक छोटा सा हैंडीकैम लेके वो फिल्म बनाए वो वाला, लेकिन वो फिल्म जो है कई सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में प्रदर्शित हुआ और काफी सारे एक्कोलेड्स मिले। तो इसी के साथ मैं अपना थॉट आज यहाँ फिनिश करता हूँ। और इन्हीं का एक मूवी का उन्होंने एक बहुत अच्छी पिक्चर बनाई थी, उस पिक्चर का नाम था इकबाल। आप लोगों ने शायद देखा होगा कईयों ने इस मूवी को। इसमें एक गूंगा बहरा लड़का होता है जो कि भैंसों का देखभाल करता होता है गांव में और अपने पिताजी को खेत में हेल्प करता है, लेकिन उसको पैशन होता है क्रिकेट खेलने का। और वो कैसे क्रिकेटर बनता है इस पर्टिकुलर मूवी में नागेश कुकनूर साहब ने उसके जुनून को पर्दे पे प्रदर्शित किया है। तो एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कि किसी का जुनून उसके प्रोफेशन, उसके व्यवसाय में परिवर्तित हुआ। नागेश कुकनूर साहब का एग्जाम्पल दिया मैंने, मैं सुरभि का एक रेफरेंस दे रहा था इससे पहले। अब इस मूवी में इकबाल भी एक भैंस चरैया से, एक खेत में काम करने वाले मजदूर से वो एक क्रिकेटर बनता है। ये मूवी अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत अच्छी पिक्चर है। और उसी का एक बहुत अच्छा गाना है, बहुत ही मोटिवेटिंग है, बहुत ही एनर्जाइजिंग है। उस गाने के साथ मैं और कुछ इंफॉर्मेशन है मुझे, आई विल प्रेजेंट दिस सॉन्ग एंड देन आई विल शेयर दिस इंफॉर्मेशन एंड देन विल क्लोज टुडेज सेशन। सो ओवर टू दिस पर्टिकुलर सॉन्ग, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये गाना। मूवी के नागेश कुकनूर साहब, और आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग भी उनका विकिपीडिया का पेज देख सकते हैं, नागेश कुकनूर के बारे में पढ़ सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो उनका जो लाइफ रहा है और अभी भी वो बहुत एक्टिव हैं और ही कीप्स ऑन मेकिंग वेरी नाइस मूवीज। इकबाल अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, इट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लॉट ऑफ कन्विक्शन दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ मुमकिन है। तो इकबाल जो है एक गूंगा और बहरा लड़का है, उसने अपने करियर में बहुत आगे and it is loosely taken on one person's life. It is also based on a kind of a true story, but of course it has been fictionalized to an extent. So with this, we will come to a close of today's session. हमारा नेक्स्ट सेशन 25 अप्रैल को होगा, और कोशिश कीजिए कि आप अपने दोस्तों को, जैसे स्वामी जी ने मेंशन किया, अपने नॉन डायबिटिक फ्रेंड्स को भी आप इसमें ले आइए और उनको भी पता चले कि आपके कम्युनिटी में क्या क्या चैलेंजेस हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम अपना दायरा जितना बढ़ा सकें, अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जिसको हम कहते हैं, हम अपना जो स्कोप है एज ह्यूमन बीइंग्स जितना बढ़ा सकें उतना कामयाबी हमारे लिए है। हम अगर अपने तक ही सीमित रह गए तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। एंड अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो माँ बाप उस पर्टिकुलर रोल को पालन कीजिए, और अगर आप यंगस्टर हैं सुरभि जैसे तो यू शुड गिव। आप लोग कॉलेज में आपको टॉक्स देना चाहिए टाइप 1 डायबिटीज पे, आप लोगों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए मीटिंग्स, एंड यू शुड टेक लॉट ऑफ लीड इन योर लाइफ to make people know what type 1 diabetes is all about, what are the challenges you face, आप लोग उन challenges को कैसे overcome करते हैं। और देखिएगा कि धीरे धीरे एक लार्ज एक ग्रुप बन जाएगा जिसके साथ में आपको काम करने में मजा आएगा। So with this few words, Swamiji, any final comments from your side before we close? Yeah, I absolutely understand what Anirban's message and the need to understand, the need to work more on that.
अभी तक अनिर्बाण जी ने जो बातें कही, पैशन टू प्रोफेशन, हमारा जुनून अगर हमारा प्रोफेशन, जिसको हम दाल रोटी कमाने का जरिया बोल सकते हैं। हर एक बच्चा स्कूल जाता है जुनून के लिए, मज़े के लिए, फ्रेंड से मिलना, गप मारना, खेलना, लेकिन पेरेंट्स भेजते हैं प्रोफेशन के लिए। मेरा बच्चा स्कूल में जाएगा तो इतना बड़ा आदमी बनेगा, इतना बड़ी औरत बनेगी, जो इतना लाखों महीना हमको कमा के देगी। प्रोफेशन, दाल रोटी कमाने के लिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं पेरेंट्स, लेकिन बच्चा खेलने के लिए जाता है, उसको पता ही नहीं आगे जाके क्या करना है। तो अगर आपका खेल कूद मजे में जो आप कर रहे हैं वही आपको दाल रोटी लाने लगे तो मजा क्या है। तो मजा करते आनंद में अगर हम कमाने सीखें तो ये बहुत अच्छा संदेशा था अनिर्बाण जी का, और अपना जीवन का अनुभव को लेके उन्होंने शेयर किया, जो खुद एक अपना जुनून को अपना एक प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है, ऐसे व्यक्ति हैं, और उनके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने किया है। तो हम सब लोग जो टाइप 1 डायबिटिक बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, हम सब लोग इस जुनून को अपना प्रोफेशन में क्यों ना बना लें। डायबिटीज के बारे में आपको इतना नॉलेज है, कोई डॉक्टर के पास नहीं है, गो एंड आस्क अ पीडियाट्रिशियन, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उनको जाके पूछिए टाइप 1 डायबिटीज के बारे में इतना ज्ञान नहीं है जितना सुरभि के पास है, कितना कृति के पास है, कितना कार्तिक के पास है, कार्तिक के माँ के पास है, और अन्वित का माँ उसका प्रूफ है। दिल्ली से हरिद्वार आए, है ना, तो जब आए उनको इतना ही बोला हमने, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे फैमिली है, आप इनके साथ जुड़ो, आपको सब ठीक हो जाएगा। तो अभी कुछ ही दिन में उसका कमजोरी जो वीकनेस से चला जा रहा है, अगले बार वो एक रोल मॉडल होके सबके सामने खड़ा होगा। जुनून, हमको स्वास्थ्य रखना है, अच्छा बनना है, ये हमारा पैशन है। इसी को अगर हम दूसरों को सिखाने लायक बने, उसके लिए एक टीम चाहिए। सो टुगेदर वी कैन फाइट बेटर, टुगेदर वी कैन मेक अ बेटर लाइफ। सब लोग मिलके हमारा कोशिश यही रहना चाहिए। सुरभि को ट्रैवलिंग पसंद है, किसी को वीडियो बनाना पसंद है, किसी को उसको वेबसाइट में लगाना पसंद है, किसी को ड्राइंग करना पसंद है, किसी को सबको मिला के मीटिंग करना पसंद है। आप सब लोग मिलके अगर एक काम करें तो दुनिया का सबसे बड़ा वेबसाइट आप लोग क्रिएट कर सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। यही मेरा संदेशा है सभी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, और ज्यादा लोगों को बुलाओ, बोलो आओ स्वास्थ्य के बारे में सीखो। डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, सबके लिए स्वास्थ्य की बातें हम यहाँ बताएंगे। जुनून को कैसे प्रोफेशन में हम बदला सकते हैं, इसको हम बताएंगे। तो अगले बार जब हम मिलेंगे 25 तारीख को अगले महीने, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको ले आओ। योगा हमको कैसे स्वास्थ्य दे सकता है, इंटीग्रेटेड वेलनेस साइंस एंड प्रैक्टिस, उसको सीखना है, करना है, दूसरों को सिखाना है। यही हमारा संदेशा है। रोज योगा करो, निरोगी बनो, आनंद में रहो, शक्तिशाली बनो, मजे में रहो, रोज अभ्यास करो, घर में सब लोग मिलके योगा प्रैक्टिस करो। डायबिटीज के बारे में जो भी प्रश्न है ग्रुप में डालो, 1 to 1 प्रश्न करो, सबसे पूछो, जेन्युइन आंसर से जब तक आपको नहीं मिलेगा प्रश्न करते रहो, सीखो। बी एंड मेक, पहले आप सीखो, उसके बाद दूसरों को सिखाओ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, शक्तिशाली बनो, है ना। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी। हर एक के अंदर में हमारा एक दिव्य शक्ति है, उसको प्रकट करना है हमारा जीवन का लक्ष्य रह के हम सब लोग मिलके डाया चैम्प्स इंडिया, हरिद्वार से जो शुरुआत हुआ है, ये पूरा दुनिया तक हमको पहुंचाना है। यही एक संकल्प के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। विश यू हैप्पी होली। नमस्कार। और टू अनिर्बाण। थैंक यू स्वामी जी। बहुत बहुत होली की सबको मुबारकबाद। और इसी संदेश के साथ, स्वामी जी के इस संदेश के साथ हम आज का सेशन यहाँ क्लोज करते हैं, और अगले महीने फिर दोबारा मुलाकात होगी, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग इसके साथ में जुड़ेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, नॉन डायबिटिक लोगों को भी इसमें लेके आइए, और उनको पता चले कि टाइप 1 डायबिटीज होता क्या है। जैसे मुझे पता चला, मुझे स्वामी जी ने इन्वाइट किया था तो मैं आया, और मैं आज ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है आपके भी कुछ मित्र आए और वो उनको भी पता चले टाइप 1 डायबिटीज के बारे में, और वो भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहें।
तो इस तरह से ही हमारा परिवार जो है आगे बढ़ेगा. ओके, विद दैट, थैंक यू वेरी मच एंड लुक फॉरवर्ड टू सी यू नेक्स्ट मंथ. थैंक यू वेरी मच. गुड डे.